Hi, my name is Parth. In this episode, we are going to be starting off with a new chapter called Reproductive Health. You can expect roughly about 4 or 5 episodes wherein we'll try and finish the entire chapter. So stay tuned. Okay. Now, if you were to Google search the number of questions that come up from reproductive health in NEET, you will be surprised to know that there are about 4 questions. A reasonable reason not to skip the chapter. Right. नाउ एनसीईआरटी जो है वो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में काफ़ी बेसिक बातें करती है. इट टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल. इट टॉक्स अबाउट birth control followed by some STDs. It talks about abortion, right? MTP. And then it talks about some options available in the market. If there is a couple who wants to conceive, तो क्या क्या options available है वो उसके बारे में बात करती है, right? So starting off with a very basic definition given by WHO, World Health Organization, which tries to define reproductive health as a state of physical well-being. Right, so you've got to be physically okay. आपके reproductive organs, उनका basic dimension, ठीक है. दूसरा, you've got to be mentally and emotionally okay, ठीक है, because life में there is a lot more. सेक्स के बाहर भी एक दुनिया है, ठीक है. And you have to have proper behavior. So behavioral well-being. You are a human, you're not just an animal who's just going to bang in and out. So behavioral well-being is also necessary. If you meet all the 3 criterias, you are reproductively healthy. Now the reason such chapters are introduced in your syllabus, basic motive hota hai inka is just to create awareness amongst the youth, just to give them an idea about what goes where, right, and create a society that is healthy. NCERT starting में talks about an initiative taken by India about family planning जो उन्होंने शुरू करी थी in the year 1951. ठीक है, आज के टाइम पे आप इसको RCH के नाम से जानते हो. इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है, फिर NCERT आपको शादी की एज बताती है. फॉर अ मेल इट इज सेड 21 इज अ गुड एज टू गेट मैरिड एंड फॉर अ फीमेल इट्स 18 years of age. ठीक है, अब सी एज इज जस्ट अ नंबर. यू शुड गेट मैरिड व्हेन यू आर रेडी, नॉट व्हेन यू रीच द एज. देन NCERT नारेबाजी पर आ जाती है. वो आपको बेसिक नारे बताती है, हम दो हमारे दो. पुराने ज़माने के लोगों ने इसको मॉडिफाई कर दिया था एज इन हम दो हमारे गिन लो. आई मीन NCERT ऑफ क्लियर फैमिली के बेनिफिट्स गिनाती है. ठीक है, काफ़ी बेसिक बातें करती है. Now see, the reason why having a smaller family is better in today's age is because अगर आप महंगाई की बात करोगे, पुराने ज़माने की बात और आज के ज़माने की बात, उसमें पैसे के मामलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, right? So if you plan a family, consider all the expenses that are coming up in the future, right? Now फिर NCERT एक बेसिक पॉइंट बताती है अबाउट प्रेगनेंसी कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में you should keep a gap of 3 years. This is good for the mother in terms of health. ठीक है, NCERT talks about a basic technique called amniocentesis, जिसमें आप amniotic fluid कलेक्ट करते हो, जिससे आप बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी है इसके बारे में आपको पता लगता है. एंड इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द बेबी, तो मतलब जैसे you've got डाउन सिंड्रोम, you've got सिकल सेल एनीमिया, देयर इज हीमोफीलिया, ऐसा कोई जेनेटिक बीमारी है तो यू कैन ऑलवेज अबॉर्ट सच चाइल्ड, बिकॉज आपके पास फैक्ट्री है तो यू कैन मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट, राइट. इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव या मोटिव मैं कहूँगा जेंडर पता करना नहीं होता है, बट कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं एंड they try to determine the sex of the child, and if it's a female they abort it, so which is again very wrong, but sadly it's happening. ठीक है, फिर NCERT आपको बेसिक पॉपुलेशन का डेटा बताती है. इनफैक्ट अगर आप गूगल करोगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज समवेयर क्लोज टू 1.6 बिलियन पीपल इन 1900. इंडिया वाज आल्सो समवेयर क्लोज टू 238 मिलियन. ठीक है, इस नंबर को अंडर एस्टिमेट मत करना, बिकॉज जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द वर्ल्ड इन 2000 एंड दिस इज़ इंडिया इन 2000. एंड जैसे जैसे मतलब समय बीतता है, 2011 दिस इज़ द वर्ल्ड एंड हियर वी आर इन 2011. ठीक है, सो वी हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली
एंड इस डेटा का कंक्लूजन ये निकलता है कि एवरी सिक्स्थ इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है। द प्रॉब्लम विथ हैविंग अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉम्पिटिशन बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इन जनरल द रिसोर्सेस। ठीक है। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट और मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट have been declining, I mean, all of this again is possible only because of better medical facilities, more aware doctors. ठीक है। I mean, resources are available not just in cities but also villages. ठीक है। so जितना मैं ये कहूँगा कि इनकमिंग है उतना आउटगोइंग नहीं है। so that is the primary reason why population is expanding। ठीक है। अब क्या है ना कि अगर हर किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। आई मीन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और एनजीओज अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं टू मोटिवेट द क्राउड ऑफ हैविंग अ न्यूक्लियर फैमिली थ्रू मूवीज, टीवी शोज, कैंप्स। देर आर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो इंसेंटिव भी देती है ट्राइंग टू प्रमोट अ न्यूक्लियर फैमिली। राइट। इस वाले चैप्टर में ना यू विल कीप हियरिंग दिस वर्ड कॉल्ड कंसीव। कंसीव का मतलब प्रेगनेंसी होता है। ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा कपल है जो वांट इंटरकोर्स बट दे डोंट वांट अ चाइल्ड। ठीक है। सो उस टाइम पे ना आप ये वर्ड काफ़ी सुनोगे, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट होता है, कंसीव मतलब प्रेगनेंसी। दैट इज वेयर बर्थ कंट्रोल कम्स अप। दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। राइट। फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।